CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। थैंक यू सो मच। हर सुबह आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलकर और मिलकर हम नए नए टॉपिक्स के बारे में सीखते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं। और आज दोस्तों हमारी ग्रीफ सीरीज़ में हम जानेंगे कि जब हम दुख से गुजरते हैं तो अक्सर हम कुड़कुड़ाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम मतलब वी फील लोनली और हम बुरा बोलते हैं, हम परमेश्वर को कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे दैट इट विल बी सो वंडरफुल इफ़ वी कैन हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आवर ग्रीव्स। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब आदमी तकलीफ में हो, दुख में हो, शोक में हो, ये क्या नेचुरल है? नहीं दर्शकों, ये नेचुरल नहीं है। हम तो बिल्कुल जैसे रेबेका बता रहे हैं, हम तो शायद खुदा के खिलाफ हो जाएं या बुरा भरा बोले और बोले है खुदा मुझ पे क्यों आता है ये सब परेशानी। शायद आप ऐसा तो नहीं सोच रहे। नहीं दर्शकों, ऐसा नहीं। ये एपिसोड हमें समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा कि वी हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर परिस्थिति में, हर हाल में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। जी दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब है समय CBN न्यूज़ का। आज की खबर में द 15th जनरल असेंबली ऑफ क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया हाल ही में केरला के कोट्टायम में आयोजित की गई थी। आइए देखें इसकी कुछ झलकियां। क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया का 15वां जनरल असेंबली 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2023 को केरल के कोट्टायम में आयोजित किया गया। Christian Conference of Asia was founded in 1957 in Indonesia. Since then, 14 general assemblies took place in different other countries in Asia. This is one of the biggest conference that India is hosting now. It was decades back. We had once. पूरे एशिया से लगभग 600 प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने इस साल की थीम परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में नया बना और सृष्टि को पुनर्स्थापित कर। This assembly's theme is about renewing ourselves and working towards integrity of creation. Ecology is a huge crisis, so the conference aims at helping churches and Christians working on the ecology crisis. रेवरेंड डॉक्टर जेरी पिल्लई ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और विषय पर संबोधित किया। The most important thing for me in this particular assembly, which is my first, as I said, is the fact that the assembly has been focusing on the theme, God, renew us in your spirit and restore the creation. And I think that is a very fantastic theme, more especially the last part of that particular theme and prayer is restore your creation. We work with Asian farmers and Asian rural churches and for rural societies through farming, sustainable agriculture and organic farming. ये सम्मेलन पूरे एशिया के लोगों से मिलने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का एक अच्छा वक्त रहा। We acknowledge and appreciate the many contributions of the Christian Conference of Asia in the life, faith, witness, and ministry of many churches. It was very wonderful time for me to come and learn a lot about the schedule that they prepare for us, and especially to have the fellowship with our friends ecumenical from many parts of Asia and even from the world coming together here. 30 सितंबर को एशियन एक्यूमेनिकल फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें एशिया के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए और इसका उद्घाटन केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने किया। I have come together in hosting you all here today.
To me, this is another instance of Kerala standing tall as a beacon of harmony and dialogue. It's indeed a privilege to be present at the Christian Conference of Asia, which is being held in the first time in Kerala's history. And it's a opportunity for all the church leaders from all across the world to come here. And Kerala is honored to host them. CBN News India is in Kottayam, Kerala to cover the 15th General Assembly of Christian Conference Asia. Around 600 people from different countries including South Korea, Sri Lanka, Philippines, New Zealand are present here. For the first time ever, CBN News India is in Kottayam. What a wonderful way जब लोग पास आते हैं, मिलते हैं, असेंबलीज आती हैं और मिल के हम एक होकर प्रभु की बातों में और प्रभु के कार्यों में हम जुड़ते हैं. आई एम श्योर इट वुड हैव बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग और बहुत आशीष का बायस होगा कई लोगों के लिए ये कॉन्फ्रेंस. जी बिल्कुल दोस्तों, और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम कंप्लेन ना करें, बिटर ना हो, बल्कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. लेट अस हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड. आइए आज की कहानी में, सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं शमा लाजरस से, जिनकी लाइफ में एक बड़ी ही गंभीर परिस्थिति ने उन्हें गहरे दुख में ढकेल दिया था. इन हालातों में क्या वो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखेंगी या वो दुख में डूब जाएंगी? आइए उनकी बहुत ही इंकरेजिंग स्टोरी हम देखें और ये कहानी आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती. मैं यीशु पापा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने मुझे सही सलामत रखा. मैं आपके सामने भजन संहिता 23 बोलना चाहूँगा. यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी. इतनी छोटी सी उम्र में इतना गहरा विश्वास, ये हैं सैमुअल लाजरस. आइए जानते हैं सैमुअल के बारे में उनकी माँ शमा लाजरस से. जब सैम हुआ तब पूरा परिवार बहुत खुश था. मेरे पापा मम्मी, मेरे इन-लॉज, सब जने परिवार में बहुत खुश थे क्योंकि बहुत समय बाद परिवार में एक बच्चा हुआ था. लेकिन कुछ दिनों बाद सैमुअल की तबीयत खराब रहने लगी. जब सैम 1 मंथ का हो गया था तब उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लगी. तो यही उसको दिखाने के लिए हम डॉक्टर्स के पास लेके गए. तब हमको पता पड़ा कि सैम को हार्ट प्रॉब्लम है. तो पूरा परिवार टूट चुका था. सब बहुत दुखी हुए. एकदम से जो खुशी का माहौल था वो एकदम दुख में बदल गया था. उस समय उनके परिवार को परमेश्वर का सहारा ही था. पूरा परिवार बैठ के प्रार्थना करता था, फैमिली प्रेयर किया करते थे. कई बार ऐसा होता था कि प्रेयर करते वक्त रोना भी आता था. सैम को भी प्रेयर में साथ लेके बैठते थे, वो भी प्रेयर पीछे पीछे रिपीट करता था. और जो ज़्यादातर जब बाइबल पढ़ते थे तो जो भजन संहिता 23 है वो हम ज़्यादा पढ़ते थे और उस जो वर्स है उसको पढ़ने से हिम्मत मिलती थी. सैमुअल का चेकअप जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में कराया गया. टेस्ट के बाद उनने हमको बताया कि जो सैम है उसका बाय बर्थ एक वॉल्व बना ही नहीं है. तो उसका जो गंदा और साफ खून है वो एक साथ ही मिलता था. फिर उन लोगों ने हमको बताया कि सैम की 2 सर्जरीज की जाएंगी. फर्स्ट सर्जरी तो होगी जब वो 6 या 7 मंथ्स का हो जाएगा और सेकेंड सर्जरी उसके 6 to 7 ईयर्स के अंदर की जाएगी. जब इसकी पहली सर्जरी होने वाली थी इसको एडमिट करवाया, इसके सारे टेस्ट वगैरह किए गए. फिर टेस्ट में हमको पता पड़ा कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो A नेगेटिव है. A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वहाँ हॉस्पिटल में था ही नहीं. हमने जयपुर में सारे हॉस्पिटल्स में कंसल्ट किया लेकिन A नेगेटिव ब्लड ग्रुप हमको नहीं मिला. किसी तरह रिश्तेदारों और दोस्तों से ब्लड का इंतजाम हो पाया. लेकिन फिर भी 1 यूनिट ब्लड की कमी पड़ रही थी. हम लोगों ने वापस दुआएं करी. तभी एक व्यक्ति जो पास में खड़ा हुआ था वो हमारी बातें सुन रहा था. हम उसको नहीं जानते थे लेकिन वो हमारे पास आया. उसने हमको बोला कि अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे को ब्लड दे सकता हूं और उसका ब्लड भी A नेगेटिव ही था. उस इंसान ने मेरे बेटे को ब्लड डोनेट किया. वो कौन था, कहां से आया, हमें कुछ नहीं पता था. ये सब कुछ खुदा की तरफ से इंतज़ाम था. इस तरह से सैमुअल की फर्स्ट सर्जरी सक्सेसफुल रही. बट डॉक्टर्स ने बोला कि सैम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सारे इन्फेक्शन से बचा के रखना पड़ेगा. मतलब ये जो हमारा जो समय था बहुत ही क्रिटिकल था. उसको हर चीज़ से हमें बचा के रखना पड़ता था. मतलब उसको ज़्यादा रोना नहीं है,
उसको कोल्ड नहीं होना है, कॉफ नहीं होना है, उसको हर इन्फेक्शन से बचाना पड़ता था उसको। मतलब हम रेगुलर स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, स्कूल के लिए भी हमको थोड़ा उसको गैप दिलाना पड़ता था क्योंकि ज़्यादा एग्जर्शन नहीं हो जाए। फिर जब वो 6 या 7 ईयर्स का हो गया, हम उसको वापस लेकर गए हॉस्पिटल दिखाने करने के लिए। तब डॉक्टर्स ने हमको बोला कि अब इसको सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये ज़्यादा एग्जर्शन कर लेता था ये ब्लू हो जाता था, इसके जो नेल्स हैं, इसका जो नोज़ है, ये सब कुछ बिल्कुल ब्लू हो जाते थे। सैमुअल की सेकेंड सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा थीं। सेकेंड सर्जरी 8 घंटे तक चली थी। जब ये सेकेंड सर्जरी पूरी हो गई, इसको 24 आवर्स तक जो डॉक्टर थे, जो हेड सर्जन थे, वो इसके पास रात भर बैठे रहे। जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो सेचुरेशन है इसका 97-98 तक जाना चाहिए था सेकेंड सर्जरी के बाद में, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। वो 92 या 93 पे आकर रुक गया था। तो उनको थोड़ा बहुत डाउट हुआ, तो उनने अपने जो फिजिशियन थे उनको बुलाया, उनसे सारी रिपोर्ट्स मांगी जो इसके टेस्ट से पहले की गई थी। उन्हें वो सारी रिपोर्ट्स को वापस स्टडी किया। तब उनको पता पड़ा कि जो सैम की जो हार्ट की बाहर की कोई एक वेन थी वो बहुत ज़्यादा प्रेस हुई थी, बहुत ज़्यादा सिकड़ी हुई थी। तो डॉक्टर ने हमको बोला कि अगर शायद वो इस चीज़ को पहले देख लेते तो शायद वो ये सर्जरी नहीं करते। लेकिन पिता परमेश्वर को ये मंजूर था कि सैम की सर्जरी हो, एक सक्सेसफुल सर्जरी हो, और उनने हमारी मदद करी, सैम की मदद करी। इस बहुत मुश्किल घड़ी से हम पूरे परिवार को बाहर निकाला। तो जब भी इसके टेस्ट होते थे, रिपोर्ट्स होती तो उससे पहले भी हम प्रार्थना करते थे, और रिपोर्ट आने के बाद भी जो भी इसके टेस्ट होते तो उसके बाद भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। तो हर एक चीज़ में हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे खुशी की हो। वाओ, थैंक यू सो मच शमा लाजरस आपकी कहानी के लिए। और देखा दोस्तों आपने कि कैसे शमा ने धैर्य और विश्वास के साथ इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद वो देती रही, और परमेश्वर का साथ और उनकी मदद को उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल सही रेबेका, कई दफा ऐसा लगता है कुछ सब चीजें गलत हो रही हैं और हमें पता नहीं कि परमेश्वर की एक योजना होती है। दोस्तों, देयर इज अ प्लान। गॉड मूव्स विद अ स्पेशल प्लान एंड ही हैज अ प्लान फॉर यू। और हर एक चीज परमेश्वर अपनी बड़ी डिवाइन विजडम में हमारे लिए कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही रेबेका, अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दर्शकों, आदमी परेशान हो जाता है और आदमी सोचता है क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू। तो कभी आपने समोसा खाया? आप कहेंगे सुबह सुबह आप समोसा को याद दिला रहे। ये देखिए समोसे पड़े हैं हमारे सामने, बड़े शानदार समोसे हैं, गरम गरम समोसे हैं, बड़े टेस्टी समोसे हैं। पर ये समोसे में जब मैं समोसा देखता हूँ दर्शकों, एक स्पेशल, ये देखिए समोसा मेरे हाथ में, ये मैं देखता हूँ कि ये आलू भरा हुआ है इसके अंदर। हम लोग इंसान इस आलू की तरह हैं। कई दफ़ा अलग अलग किस्म के मसाले डाल के ज़िंदगी हमें अलग अलग स्पाइसेस डालते हैं हमारी लाइफ में। कई लोगों के उसमें सिर्फ बेजान है, शायद दुख है, परेशानी है, शायद कोई जायका नहीं है ज़िंदगी में। आप सोच रहे हैं लाइफ इज़ विदाउट एनी टेस्ट, और कईयों में तो बहुत सारी पेन, पीड़ा और हॉट चिली है लाइफ में, और परेशानी ही परेशानी। पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, लाइफ जो भी आपको दे, हाँ, पर ये जो कवरिंग देख रहे हैं आप, ये जो बनाते हैं, ये जो एक स्पेशल डो होता है जिससे वो बेल के इसको एक कवर बनाते हैं, और इस कवरिंग में समोसा बनता है और उसके अंदर आलू डाला जाता है। जो जब मैं समोसा देखता हूँ, एक तो वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। ट्रायंगल मतलब ये हाथ देखिए यूं करके, हमेशा परमेश्वर की तरफ हमारी नजरें होनी चाहिए, जो भी हाल हो, जो भी परेशानी हो, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार सब कुछ भलाई के लिए करता है। और दूसरी बात, उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसका प्रेम हमें हमेशा सराउंड करके रखता है। क्यों? अगर ये कवरिंग नहीं होगा ना तो आलू बिखर जाएंगे और समोसा कभी बनेगा नहीं। दोस्तों, याद रखें, उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह और उसकी दया हमें एनवलप करके रखती है, हमें ढांप के रखती है, हमें संभाल के रखती है इस दुनिया में, इस जिंदगी में। फ्रेंड्स, ये तो एक समोसा है, पर याद रखें जीवन में भी परमेश्वर हमें संभालता है, हमें रखता है हर परिस्थिति में। उसकी दया, उसका अनुग्रह और ये कवरिंग परमेश्वर की दया की, मर्सीज की हमेशा हमें लपेट के रखती है। वो चादर उसकी रहमत की हमेशा हमारे ऊपर रहती है हर परिस्थिति में। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 32:10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा।
सचमुच दुष्ट पर तो बड़ी पीड़ा आती है, और याद रखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो प्रभु के लोग हैं ना, जो उससे प्रेम करते हैं, उसके भय में चलते हैं, उसकी करुणा हमें आस पास सराउंड करती है। His mercies, His grace, His love surrounds us, envelops us. वाओ, कितनी खूबसूरत बात है। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी आ जाए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, याद रखें उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी मोहब्बत और उसकी दया हमें ढांपे रहती है और हम बचे रहते हैं। खुदा आपकी मदद करे कि आप उसकी ओर देखें और उसको अपने जीवन में निमंत्रण दें, ताकि आप भी इसको महसूस करें, खुदा की उस मोहब्बत, प्रेम को अनुभव करें अपने जीवन में। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन इन मुश्किलों में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं जब हम जानते हैं कि सब कुछ जो हमारे जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर की नॉलेज में है। उन्हें हमारे जीवन की हर बात का ज्ञान है और वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में भलाई लाना चाहते हैं, और तब हम अपने दुखों में भी, अपनी तकलीफ़ों में भी उनका धन्यवाद दे सकते हैं। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें, अपने चैलेंजेस को हम परमेश्वर के पास लेकर आएँ। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम मुलाकात करेंगे डेबी और गिस्मो के साथ। और गिस्मो से बच्चों ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब गिस्मो देंगे। तो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन, हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम इंकरेजमेंट पा रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में दुखों से गुजरें, तकलीफ़ों से गुजरें, तब हम कड़वाहट से ना भरें और हम कुड़कुड़ाएं नहीं, कंप्लेन नहीं करें, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उन तकलीफ़ों के लिए भी जिनमें से परमेश्वर भलाई लेकर आ रहे हैं और हमारे जीवन में हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अपनी तरह हमें बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और दर्शकों, अब वो समय आ गया है, और ख़ास तौर से अगर बच्चे लोग देख रहे हैं, दिस इज़ योर टाइम, क्योंकि गिज़्मो आ रहे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सो लेट्स गो टू आस्क गिज़्मो। So आज का सवाल पूछा है जेकब ने, and he is asking, my friend recently lost his father in an accident and he misses him so much. His memories make him sad. How can I help him with the Bible in overcoming his grief? I'm sorry for your friend's loss, Jacob, and I know ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए. As a good friend, be with him in his tough time. His earthly father may not be with him, but remember that the heavenly Father, God, is always by his side and loves him. Encourage him with word of God and pray for him. I have some Bible verses for you to share with your friend to help him in this time. John 11:25-26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Romans 14:8. If we live, we live for the Lord. If we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Always keep your friend and his family in your prayer, Jacob. और आप try करना कि ज़्यादा time उसके साथ spend करो. This way you will help him in overcoming the grief of his loss. That's great advice, Gizmo. Jacob, do you know the Bible provides us the necessary strength to overcome these tough times and move on in life. और Jacob, याद रखें, हम भी आपके दोस्त और उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे।
If you have a question for Gizmo, make sure you send us a message on Facebook or Instagram. Until next time, bye. Bye. क्या बात है, वंडरफुल गिज्मो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू डेबी। इंडीड बच्चों के सवाल इतने इनोसेंट होते हैं, फिर भी बड़ी खूबसूरती से गिज्मो ने उनका जवाब दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गिज्मो एंड डेबी जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के सवालों में हमें अपने भी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, डू एनकरेज योर चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज दैट्स द वे दे लर्न। जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो सीखते हैं एंड वी शुड एनकरेज देम। और आप बच्चों के सवाल ज़रूर पूछें। आप गिज़्मो से पूछने के लिए आप जा सकते हैं सुपरबुक के फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर आप जाकर उनके सवाल आप शेयर कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। क्योंकि हम उसकी हजूरी में हैं और हम प्रार्थना करेंगे, मिलकर अपने सारे ज़रूरतों को खुदा के सामने लाएंगे और अपने खुदा के सामने हम प्रार्थना करेंगे। कहीं मत जाइए, यूं गए और यूं आए वापस हम। देश के बहुसांस्कृतिक क्रिसमस गीतों का उपहार नए रूप में पूरे दिसंबर महीने एक नई जिंदगी पर। और प्रभु सना सागर आंधी चलाए, मैं और प्रभु सना सागर आंधी चलाए। आप इन गीतों को पहली बार सिर्फ सीबीएन के प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। और आज एक नई जिंदगी में हम सीख रहे हैं कि हमें अपने दुखों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। 1 थेसलोनियंस उसके 5th चैप्टर और 16 to 18 वर्सेस में हम पढ़ते हैं, रिजॉइस ऑलवेज, प्रे कंटिन्यूअली एंड गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। वाह, परमेश्वर की मर्जी है कि हम आनंदित रहें और हर घड़ी हर समय प्रार्थना करें। तो फिर देर क्या? तो दर्शकों, देरी क्या? आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की हजूरी में जाएं और अपनी सारी जरूरतों को उसके सामने लाएं। क्यों? क्योंकि वही है जो हमारा मददगार है, वही है जो हमारी परवाह करता है और वही है जो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ना केवल हमारे स्वर्गीय पिता हैं, परमेश्वर हैं, हमारे क्रिएटर गॉड हैं, पर आप हमारे दोस्त भी हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे दोस्त भी हैं। और प्रभु जी, हम आपके सामने आते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु जी, और बड़े ही प्रभु जी दीनता से आपकी हजूरी में आकर अपने दर्शकों के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं। प्रभु, अलग अलग भिन्न भिन्न परेशानियों में होंगे प्रभु जी, और क्या उनका एटीट्यूड है प्रभु जी हम नहीं जानते। शायद वो बहुत नेगेटिव हो, शायद उनके मन में बहुत करवाहट हो, गुस्सा हो, जो भी परिस्थिति की वजह से वो परेशान हो। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप उनको एक शुक्रगुजारी का आत्मा दें। लॉर्ड, गिव देम अ स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ताकि हर हाल हर परिस्थिति में वो आपको धन्यवाद दें और हर घड़ी हर वक्त आपकी आराधना और आपकी स्तुति करें। प्रभु, आप यही चाहते हैं प्रभु जी। दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। हमारे दर्शकों पे आपका खास हाथ आए और उन पे प्रभु आपकी मेहरबानियां आए प्रभु जी, और आप दया करें प्रभु जी। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो खुदा के सामने प्रार्थना करी है, पर याद रखें कि हर घड़ी हर लम्हा हमें उसको शुक्रिया अदा करना है, बिकॉज उसकी वजह से तो हम जिंदा हैं। ये जीवन भी उसी का है, और याद रखें अगर उसने जीवन दिया तो जीवन वही चलाएगा। इसलिए हमें उसी की ओर देखना है और जिंदगी के सफर को पूरा करना है। जी दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हर परिस्थिति में हम उसका सिर्फ धन्यवाद ही करें। इन एवरीथिंग
लेट अस ओनली गिव थैंक्स टू गॉड। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इंकरेज कर रहे हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो मुश्किल हो या बहुत मुश्किल हो, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें दैट ही इज़ इन कंट्रोल एंड ही विल ब्रिंग आउट गुड फ्रॉम ऑल आवर सिचुएशंस। बहुत खूबसूरत। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि हर परिस्थिति में हम उसको थैंक्स बोलें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज हम सुनेंगे ये गीत ए पथिक तू सदा याद रखना। और आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Until then, have a lovely blessed day and keep thanking the Lord and keep on being grateful to him. नमस्कार। God bless you. कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में कभी भी अकेला नहीं, है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे, प्रभु यीशु है सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे, साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे, सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे, बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं, है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला